السلام علیکم ناظرین۔ گاڑی ہرے بھرے درختوں اور میدانوں میں دوڑتی جا رہی تھی۔ ٹیلے اور پہاڑیاں دور دور ہٹ گئی تھیں۔ تقریباً سوا گھنٹے کے سفر کے بعد ریلوے لائن کے آس پاس آبادیاں نظر آنے لگیں۔ گاڑی شہر کے ایک بڑے پل پر سے گزری، جس کے نیچے سے موٹر کاریں اور بیل گاڑیاں گزرتی میں نے دیکھیں۔ میں اٹھ کر ٹوائلٹ میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی کی رفتار ایک دم سے کم ہو گئی اور پھر ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گاڑی کو اچانک سرخ سگنل دے کر روک لیا گیا ہوا۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر اگلے ڈبوں کی طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ریلوے لائن کے پاس باوردی پولیس کی بھاری تعداد دکھائی دی۔ اب ٹوائلٹ میں چھپنا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے برابر تھا، کیونکہ پولیس کی زیادہ تعداد بتا رہی تھی کہ ایک ایک ڈبے کی تلاشی لی جانے والی تھی۔ گاڑی کو اسی مقصد کے لیے اسٹیشن سے کافی پیچھے روک لیا گیا تھا، تاکہ مفرور قاتل اور جاسوس مسافروں کے ہجوم میں گم نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ ڈبے کے دوسرے دروازے میں سے بھی مسافر جھانک کر باہر دیکھ رہے تھے کہ ٹرین کیوں کھڑی ہو گئی ہے۔ میں بھی دوسرے دروازے پر آ کر باہر دیکھنے لگا۔ ٹرین کی اس طرف بھی پولیس موجود تھی، ڈبوں کے آگے پھیل کر ٹرین کو گھیرے میں لے رہی تھی۔ اگلے ڈبوں کی جانب سے ایک دیہاتی آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا ہوا ہے بھیا، پولیس کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، کوئی قیدی بھاگ گیا ہے، پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ میں چپکے سے دروازے میں سے پیچھے کھسک گیا۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ وقت ٹرین سے نکل کر جس طرف منہ اٹھے اسی طرف بھاگ جانے کا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ آخری بوگی کا آخری ڈبہ تھا اور اس کے پیچھے بھی ایک انجن لگا ہوا تھا۔ ڈبے کے کچھ مسافر حالات معلوم کرنے کے لیے ڈبے سے اتر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا انجن کے پیچھے خالی ریلوے لائن پر آ گیا۔ پیچھے ریلوے لائن خالی پڑی تھی اور ریلوے لائن کی دونوں جانب بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے ریلوے لائن کے درمیان پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہاں پیچھے سے مجھے کچھ دور تک کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں آگے ٹرین کی دونوں جانب موجود پولیس کو نظر آ سکتا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں محفوظ رینج سے نکلنے والا ہوں اور پیچھے سے مجھ پر پولیس والوں کی نظر پڑ سکتی ہے، تو میں ریلوے لائن پر بیٹھ گیا۔ میں نے سر آگے نکال کر گاڑی کے ڈبوں کی طرف دیکھا۔ مجھے پولیس کے سپاہی ڈبوں میں گھستے اور ڈبوں سے نکلتے نظر آئے۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ اس کی دوسری جانب اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ اس کے آگے کیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھے بیٹھے آگے کھسک کر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ جھاڑیوں میں گھستے ہی میں جھک کر جس طرف منہ اٹھا تھا اس طرف جلدی جلدی چلنے لگا۔ یہ کوئی جنگل نہیں تھا۔ گاڑی بھوساول شہر کے مضافات میں کھڑی تھی۔ مجھے سڑک پر سے گاڑیوں کے گزرنے اور ہارن دینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریلوے لائن زمین سے اونچی تھی۔ آگے دیوار تھی جس کی دوسری طرف نیچے سڑک پر ٹریفک چل رہی تھی۔ دیوار 10-12 فٹ سے زیادہ اونچی تھی۔ میں دیوار سے نیچے اترنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتے ہوئے پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ آگے ایک جگہ سے ریلوے کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں ڈھلوان بنی ہوئی تھی، جہاں سے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ نیچے سڑک پر اتر رہی تھی۔ میں بھی وہاں سے اتر کر سڑک پر آ گیا۔ سڑک کے پار مکانوں کی قطار تھی، جس کے درمیان ایک تنگ سی گلی نظر آئی، تو میں سڑک کراس کر کے اس گلی میں داخل ہو گیا۔ اب میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا تاکہ اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ گلی کے آگے پھر بازار تھا۔ یہاں چند ایک کھوکھا نما دکانیں ہی تھیں۔ ایک طرف مندر تھا۔ مندر کے آگے چھوٹا سا تالاب تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑک گیلی تھی۔ میں سڑک کراس کرنے لگا کہ پیچھے ایک لاری آ کر مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ کلین دروازے میں سے میری طرف دیکھ کر کہا، برہان پور۔ برہان پور لالا جی۔ بھوساول سے اگلا شہر برہان پور ہی تھا۔ میں نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس خطرے والے علاقے سے تو نکلو۔ میں دوڑ کر لاری میں گھس گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ آگے جا کر لاری کی بھی چیکنگ ہو سکتی ہے۔ لاری میں کافی سواریاں بیٹھی تھیں۔ میں بھی ایک جگہ سواریوں میں گھس کر بیٹھ گیا۔ کلینز نے لاری کا دروازہ بند کرتے ہوئے زور سے ہاتھ مار کر کہا، چلو دادا، اور لاری روانہ ہو گئی۔
मैं लारी के दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। सोच रहा था कि अगर आगे पुलिस की कोई चेक पोस्ट हुई तो लारी से उतरकर फरार हो जाऊंगा। लारी भोसावल शहर की सड़कों पर से होती हुई बुरहानपुर जाने वाली सड़क पर निकली। शहर में किसी जगह पुलिस की चेक पोस्ट नहीं थी। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया। ये बात तयशुदा थी कि अब मुझे दिल्ली नहीं तो कम अज़ कम भोपाल से आगे तक इसी तरह किस्तों में सफ़र करना था। मैं कोई जेल से भागा हुआ आम सा शहरी होता तो पुलिस को मेरे बारे में तरद्दुद और बक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आम कैदी नहीं था। एक तो मैंने पुलिस के आला अफसर को कत्ल किया था और दूसरे बकौल पुलिस के मैं पाकिस्तानी जासूस था जिसने भारत के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कमांडो सरगर्मियों से ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। जाहिर है जलगांव से लेकर भोपाल तक की पुलिस को मेरा हुलिया बताकर खबरदार कर दिया गया होगा और पुलिस हर शहर के रेलवे स्टेशन लारी अड्डों पर मुझे पकड़ने के लिए मौजूद होगी। भोसावल से बुरहानपुर तक का फासला इतना ही है जितना लाहौर से गुजरात तक का फासला है। लारी बड़ी शिकस्त हाल थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आए सड़क पर निगाह डाल लेता था। रास्ते में लारी सवारियां भी उठा रही थी, यूं रुक रुक कर चल रही थी। भोसावल का शहर आजकल के भारत के सूबा महाराष्ट्र में वाक़ है। बहारपुर से भारत की सूबा मध्य प्रदेश यानी वस्ती हिंदुस्तान के घने जंगलों वाले इलाकों की सरहद शुरू हो जाती है। बुरहानपुर से कुछ किलोमीटर पीछे मध्य प्रदेश के घने जंगल और छोटी बड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं उन जंगलों से वाकिफ़ था। सारे के सारे जंगल तो मैंने नहीं देखे थे, मगर यहाँ चूँकि एक मर्द मोमन ने मुझे कमांडो ट्रेनिंग दी थी इसलिए उसके होशंगाबाद वाले जंगल मेरे लिए अजनबी नहीं थे। मगर होशंगाबाद बुरहानपुर से काफ़ी फासले पर था। मौसम की सूरत हाल ये थी कि सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। किसी वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाती और इसके बाद शुरू हो जाती। मूसलाधार बारिश बस रात को ही हुई थी। रास्ते में एक कस्बा आया तो लारी रुक गई। दुकानें टीन की ढलानी छतों वाली थीं। एक आदमी संतरों का टोकरा उठाए लारी के पास आ गया। ये नागपुरी संतरे थे। नागपुरी संतरे बाहर से सब्ज और अंदर से केसरी रंग के होते हैं। किसी ज़माने में नागपुरी संतरे बड़े मशहूर थे, मगर इन संतरों को पाकिस्तान के कीनू ने चानू शाह ने चीत करा दिया। 65 की जंग से पहले पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी वीज़ा लेकर इंडिया जाता था, भारत के लोग उससे पहला सवाल ये करते थे, पाकिस्तानी कीनू लाए हो तो हमें दे दो, हम मुँह मांगे पैसे देंगे। भारत से जो लोग वीज़ा लेकर पाकिस्तान आते थे वो पाकिस्तान से वापस इंडिया जाते हुए कीनुओं का टोकरा भर कर ज़रूर ले जाते थे। नागपुर के संतरे देखकर मुझे पाकिस्तान के कीनू याद आ गया। फिर अपना वतन पाकिस्तान बहुत याद आया। यहीं दिल चाहने लगा कि फ़ौरन पाकिस्तान वापस पहुंच जाऊं और अपने वाले साहब की कब्र पर जाकर कहूँ, अब्बा जी, मियाँ जी, मैंने आपसे वादा किया था, उसे जान की बाजी लगाकर पूरा कर रहा हूँ। लारी आगे चल पड़ी। काफ़ी देर बाद लारी फिर एक कस्बे के बाहर सड़क पर रुक गई। वहाँ जंगल में से कोई सड़क निकाली जा रही थी। बड़े मजदूर मर्द और औरतें काम कर रही थीं। मैंने यहाँ उतरकर चाय और साथ रबर रोटी के 2-4 स्लाइस खा लिए। यह नाश्ता मेरे लिए सारे दिन के लिए काफ़ी था। आगे के हालात का कुछ पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना पड़े और क्या सूरत हाल पैदा हो जाए। बुरहानपुर का शहर करीब आ रहा था। सड़क की दोनों जानब शहर की गाड़ियाँ कभी कभी आ जाती थीं। यहाँ दूर दूर पहाड़ियाँ दरख्तों से ढकी हुई थीं। लारी एक बार फिर जंगल वाले इलाके से गुजरने लगी। बूंदाबांदी रुक गई थी। सड़क की दोनों जानब कहीं देवदार और कहीं साल के घने दरख्त आ जाते थे। ये वस्ती हिंदुस्तान के घने जंगलों के दरख्त थे। सामने से फौजी गाड़ियों का कन्वय आने लगा। हमारी लारी सड़क की एक जानब हो गई और उसकी रफ्तार हल्की हो गई। लारी सड़क का मोड़ घूमी तो कुछ फासले पर एक ऊंचे पहाड़ की ढलान पर बने हुए मकान नजर आए। लारी रेलवे फाटक से गुजर गई। रेलवे फाटक से कुछ दूर जाकर लारी की रफ्तार बहुत हल्की होने लगी। फिर लारी सड़क से उतर कर रुक गई। मैं समझा कोई और कस्बा आया होगा। यहाँ से ड्राइवर सवारियाँ लेकर आगे चले गया, मगर किसी कस्बे के वहाँ कोई आसार नहीं थे। लारी जंगल के इलाके में खड़ी हो गई थी। मैंने कलीन से पूछा कि गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है। उसने नीचे उतरते हुए कहा, अभी मालूम कराता हूँ। वो लारी से उतर कर आगे चला।
तो मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा। हमारी लारी के आगे भी 2-3 लारियां खड़ी थीं। मेरे दिल में कुछ शक पैदा हुआ, मगर मैंने कोई ख्याल न किया। ड्राइवर भी नीचे उतर आया था। कलीन जल्दी वापस आ गया। ड्राइवर ने पूछा, क्यों रे, क्या बात है आगे? वो बोला, दादे आगे पुलिस ही पुलिस है, चेकिंग हो रही है। क्या हो गया है रे? क्या उधर फोबत डाकू आया हुआ है? जब ड्राइवर की ज़बान से ये जुमला अदा हुआ तो मैं लारी से उतरकर पीछे जा चुका था। सामने से फौजी गाड़ियां अभी तक चली आ रही थीं। ये कोई मिलिट्री कन्वॉय था। बड़े बड़े फौजी ट्रक थे जो तरपालों की छतों वाले थे। एक ट्रक के बाद दूसरा ट्रक गुजर जाता था। उनके दरमियान थोड़ा सा वक्फा मिलता था। मैं उस वक्फे में जल्दी सड़क पार करके जंगल में दूसरी तरफ दरख्तों में उतर गया। मेरी तलाश में बुरहानपुर की पुलिस ने सड़क की नाकाबंदी कर रखी थी। अगर आगे कई एक लारियां खड़ी न होती तो मुझे ये मोहलत नहीं मिल सकती थी। हमारी लारी सीधी पुलिस वालों के पास जाकर खड़ी हो जाती और मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। जिस जगह मैं सड़क से दौड़कर उतरा था वहाँ दरख्त इतने घने नहीं थे, लेकिन जंगली झाड़ झनकार ने बहुत जल्द मुझे भी अपने अंदर छुपा लिया। फिर भी मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता ना किया और तेज़ तेज़ कदम उठाता चलता गया। वहाँ कोई पगडंडी या रास्ता नहीं था। झाड़ियाँ और दरख्तों की बाहर निकली हुई जड़ें और घास ही थी। मुझे उनमें चलने फिरने की आदत हो गई थी। मैं उन दरख्तों और झाड़ियों में काफ़ी दूर निकल गया था। रास्ते में कई नदी नाले आए। ये नीम पहाड़ी नदी नाले थे और इनमें बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। मैंने उन पत्थरों पर पाँव रखकर नदी नाले पार किए थे। जैसे जैसे मैं आगे को हो रहा था जंगल ज़्यादा घना होता जा रहा था। मैं ख़तरे से बहुत दूर निकल गया था, लेकिन एक ख़तरा यहाँ भी था कि कहीं मैं इस जंगल में भटक न जाऊँ। बस इन अंदाज़े से मैंने शुमाल की तरफ रुख किया हुआ था, बल्कि शुमाल की तरफ चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे दिल्ली की तरफ जाना था और दिल्ली शुमाल की तरफ चलकर ही पहुंच सकता था। मुश्किल यह थी कि घने जंगलात में आदमी अपनी सिमत बरकरार नहीं रख सकता। वहाँ कोई सड़क या पगडंडी वगैरह तो होती नहीं। जंगल के शुरू में तो इस किस्म की छोटी सड़क या पगडंडी कहीं कहीं मिल जाती है, मगर मध्य प्रदेश के घने जंगलों में रास्ता तलाश करना मुश्किल होता है। जहाँ कहीं आदिवासी यानी जंगली कबीले के लोग रहते हों वहाँ कोई पगडंडी ज़रूर नज़र आ जाती है, जो इन जंगली लोगों के चलने फिरने से बन गई हुई होती है। अभी तक मुझे ऐसी कोई पगडंडी नज़र नहीं आई थी। दूसरा ख़तरा शेर, चीते और हाथी वगैरह का भी था। ये ऐसे दरिंदे हैं कि इन जंगलों में किसी भी झाड़ियों से निकलकर सामने आ जाते हैं। चुनाचे मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था और अपना रुख शुमाल की तरफ ही रखा हुआ था। किसी जगह चट्टानों या किसी नदी नाले या खाड़ी की वजह से मुझे दाएं बाएं हो जाना पड़ता तो मैं आगे जाकर फिर शुमाल की जानिब रुख कर लेता था। यह सब कुछ अंदाजे से हो रहा था। मेरे पास कोई कंपास तो था नहीं। बस दिल में खुदा से दुआ मांगता कि या अल्लाह मैं जंगल में भटक न जाऊं। सहरा में आदमी भटक जाए तो कम अज़ कम रेत के किसी टीले पर चढ़कर और सूरज की मदद से अपनी सिमत ज़रूर मालूम कर सकता है, लेकिन घने जंगलों में आप दरख्त पर भी चढ़ जाएं तो आगे सिवाय दरख्तों के कुछ भी नज़र नहीं आता। वैसे भी दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। एक जगह थोड़ी सी खुली जगह आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल एक दूसरे में घुल मिल गए थे। सूरज उनके पीछे छुपा हुआ था। एक धुंधली सी सफ़ेदी फैली हुई थी। वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं होता था। चलते चलते जब मैं थक गया तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है। हो सकता है आधा दिन गुजर गया हो। मैं एक जगह बैठ गया। जंगल में सन्नाटा था। किसी किसी दरख्त पर से एक आध परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। बरसात के सब्ज़े और दलदल की बू फैली हुई थी। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, इसके बाद दोबारा चलना शुरू कर दिया। रास्ते में जंगली केलों के दरख्तों का झुंड नज़र आया। यहाँ मैंने छोटे छोटे जर्द रंग के केले कुछ तोड़कर खा लिए। एक छोटी सी नदी करीबी बह रही थी। वहाँ पानी पीकर प्यास बुझी और नदी के साथ शुमाल की तरफ चलने लगा। आगे जाकर नदी मगरब की तरफ मुड़ गई। मुझे उस तरफ नहीं जाना था। इस इलाके से तो मैं फरार होकर आया था। चुनाचे मैंने नदी के किनारे को छोड़ दिया और सामने की सिमत वाले दरख्तों में घुस गया। यहाँ एक जगह मुझे अजीब सी बू महसूस हुई। चलते चलते मैं ऊंची ऊंची नरकल की झाड़ियों के करीब से गुजरा।
तो वहाँ मुझे याद खाए हुए हिरन की लाश नजर आई। मैंने फ़ौरन रास्ता तब्दील कर लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से दूर हटने लगा। यहाँ हिरन की लाश किसी शेर ने आधी खाने के बाद छुपाई हुई थी और कोई पता नहीं था कि वो किस वक्त जहाँ आ जाए। मैं दूर रहता हुआ एक टीले के पास आ गया। उस टीले ने शुमाल की तरफ जाने वाला रास्ता रोक रखा था। मैं टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। टीला ज़्यादा ऊंचा नहीं था। उसकी चोटी पर बांस के दरख्तों के बड़े बड़े झुंड थे। उनके पीछे दूसरी तरफ टीले की ढलान उतरती थी। मैं दूसरी तरफ उतरा तो देखा कि वहाँ से झाड़ियों के दरमियान पतली सी पगडंडी बनी हुई थी जो उधर ही को जा रही थी जिधर मैं जा रहा था। मैं पगडंडी पर चलने लगा। थोड़ी दूर चला हूँगा कि पीछे से किसी के बातें करने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से एक तरफ हटकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। मेरी नज़रें पगडंडी पर थीं। कोई आदमी बात कर रहा था। आवाज़ करीब आई तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी चला रहा है जिसने कंधे पर छोटी सी गठड़ी लटका रखी है। उसके साथ एक नौजवान औरत है। उसने भी बगल में एक गठड़ी दबा रखी है। जब वो दोनों मेरे करीब से गुजरे तो मैंने उन्हें गौर से देखा। बूढ़े आदमी की सफ़ेद दाढ़ी मूछें इस इलाके के मुसलमानों की तरह थीं। औरत ने भी माथे पर तिलक या बिंदिया नहीं लगाई हुई थी। दोनों यकीनन मुसलमान थे। मैंने उन्हें आगे निकल जाने दिया। जब वो 2-4 कदम आगे निकल गया तो मैं भी झाड़ियों से बाहर आ गया। ये इस इलाके के लोग लगते थे और जंगल में मेरी रहनुमाई कर सकते थे। इनके मुसलमान होने से भी मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने पीछे से आवाज़ दी तो दोनों वहीं रुके और मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से उनके पास आ गया और बूढ़े को अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने कहा, मियाँ जी, मैं जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। क्या आपको मालूम है कि आगे कौन सा शहर है? बूढ़े ने नौजवान औरत को अपने पीछे कर लिया था और मुझे बड़े गौर से देख रहा था। तुम इस इलाके के नहीं लगते। इस जंगल में कैसे आ गए हो? मैंने यूं ही एक कहानी घड़ कर सुना दी कि एक दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था। शेर ने हमला कर दिया। मेरा दोस्त दूसरी तरफ जान बचाकर भाग गया। मैं जान बचाकर इधर की तरफ निकल आया हूँ। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन से शहर से यहाँ आए थे? मैंने बुरहानपुर शहर का नाम ले दिया क्योंकि पीछे वही शहर था। नौजवान औरत बूढ़े के पीछे किस कदर सहमी हुई खड़ी थी और मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मैंने फ़ौरन कहा, मियाँ जी, मैं मुसलमान हूँ। मेरे माँ बाप पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब से बम्बई आकर आबाद हो गया। उनका बम्बई में सिलाई मशीनों का कारोबार था। वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं दुकान पर बैठता हूँ। एक दोस्त के साथ शिकार खेलने यहाँ चला आया और मुसीबत में फंस गया हूँ। अपने आप को पंजाबी मैंने इसलिए बता दिया था कि मेरा पंजाबी लहजा उर्दू बोलते वक्त फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता था। बूढ़े ने कहा, बेटा, आगे दरिया पार भंडार का कस्बा है। वहाँ से तुम्हें बुरहानपुर जाने वाली रेलगाड़ी मिल जाएगी। हमारे साथ आ जाओ। हम उधर ही जा रहे हैं। ये मेरी बहू है। यहाँ करीबी एक गाँव में आए थे, अब वापस भंडारा जा रहे हैं। मैं उनके साथ चल पड़ा। मैंने सोचा कि भंडारा कस्बे के रेलवे स्टेशन पर अगर बुरहानपुर की तरफ ट्रेन जाती है तो लाजमी तौर पर आगे दिल्ली वगैरह की तरफ भी जाती होगी। मैं वहाँ से कोई ना कोई गाड़ी पकड़ लूँगा। इतनी दूर निकल आया हूँ। आगे पुलिस कहाँ मेरी तलाश में ही होगी। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका बेटा देवलाल ही शहर में किसी कारखाने में मुलाजिम है। महीने में एक बार घर आता है। मैं अपनी बहू को उसके माँ बाप से मिलाने लाया था। पीछे उनका गाँव है। हम छोटी सी पगडंडी पर चले जा रहे थे। बूढ़ा आगे आगे चल रहा था। पीछे उसकी बहू चल रही थी। उसके पीछे मैं चला रहा था। बूढ़े ने यह भी बताया कि वो भंडारा में अपने मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है और बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता चला जा रहा था। मैंने पूछा, मियाँ जी, यहाँ से दरिया कितनी दूर है? वो बोला, ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, वहाँ घाट है। हमें सवारियों वाली कश्ती मिल जाएगी। मुझे इत्मीनान हो गया था कि इस जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला था, बल्कि मैं एक रेलवे स्टेशन पर भी पहुँच जाऊँगा, जहाँ से रात के वक्त दिल्ली की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी पकड़ने की कोशिश करूँगा। पगडंडी अब जंगल के ऐसे इलाके में दाखिल हो गई थी जहाँ इर्द गिर्द बड़े गुंजान दरख्त थे। मैं अपनी सोच में गुम पीछे चला जा रहा था। अचानक मुझे एक मर्द की रौबदार आवाज़ सुनाई दी, खड़े हो जाओ यहीं। मैंने सर उठाकर देखा। सामने पगडंडी पर एक भारी जिस्म वाला आदमी खड़ा था।
اس کے ہاتھ میں چھرا تھا۔ اس کے دائیں جانب 2 قدم پر ایک اور آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی چھرا تھا۔ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور ان کے چہرے پورے نظر نہیں آتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو یا ٹھگ لٹیرے ہیں۔ بوڑھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ لڑکی چیخ مار کر اپنے سسر سے لپٹ گئی۔ میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑا ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں ڈاکو آگے بڑھے۔ خاموش تماشائی بنے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا آنن فانن کر گزرنا تھا، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ڈاکو بوڑھے اور اس کی بہو کو پکڑ لیتا تو پھر میرے لیے ان پر حملہ کرنا اور ان کی قاتلانہ گرفت سے لڑکی یا بوڑھے کو بچانا مشکل ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی ڈاکو اس لڑکی اور بوڑھے کی طرف بڑھے، میں دوڑ کر ان کے سامنے آ گیا اور ایسی اداکاری کرنے لگا جیسے میں بھی ان سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے کہا، بھائیو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جانے دو۔ جو ڈاکو بھاری بدن والا تھا اس نے کہا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس لڑکی کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں بے راموں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دوسرے ڈاکو نے ہنس کر کہا، ہاں لکھو دادا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لکھو ڈاکو کے ہاتھ میں جو چھرا تھا وہ زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ مجھ سے بمشکل 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میرے پیچھے بوڑھا اپنی بہو کو ساتھ لگا کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکو نے مجھے گالی دے کر کہا، ایک طرف ہٹ جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے بابو۔ اس نے مجھے ایک طرف دھکا دیا تاکہ بوڑھے کے ساتھ چمٹی ہوئی نوجوان لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے۔ لڑکی اونچی آواز میں رونے لگی۔ بوڑھا اس ڈاکو کی منتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی ڈاکو نیچے جھکا، میں نے اس کا چھرے والا ہاتھ پکڑ کر زور سے نیچے کو جھٹکا دیا۔ یہ کسی اناڑی آدمی کا اٹیک نہیں تھا، ایک تربیت یافتہ کمانڈو کا اٹیک تھا۔ ڈاکو سنبھل نہ سکا، وہ منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے پوری طاقت سے ٹھڈا اس کے منہ پر مارا، وہ الٹا ہو گیا، چھرا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اتنے میں دوسرے ڈاکو نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اگر وہ دور سے مجھ پر چھرا نشانہ لگا کر پھینکتا تو میں زخمی ہو سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اپنے ساتھی ڈاکو کو بچانے کے لیے وہ دوڑ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ جیسے ہی میرے قریب آیا تو میں نے اس کے چھرے کا وار بچاتے ہوئے اس کے چھرے والے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی ٹانگوں میں لات ماری۔ یہ بڑا خطرناک داؤ ہوتا ہے۔ اگر لات ٹھیک ٹانگوں کے درمیان پڑ جائے اور لات بھی کسی مارشل آرٹ کے ماہر یا کمانڈو کی ہو تو آدمی دوہرا ہو جاتا ہے۔ اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکو وہیں دوہرا ہو گیا۔ اس دوران پہلے والا ڈاکو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ڈھاٹا کھل گیا تھا، چھرا دور پڑا تھا۔ وہ مجھ سے جسمانی اعتبار سے زیادہ موٹا اور بھاری بدن کا تھا۔ وہ گالی دیتا ہوا غضبناک ہو کر میری طرف بڑھا اور اس نے میری گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لینے کی کوشش کی، مگر میں بجلی کی تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور وہیں سے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ میرے بازو نے اس کی گردن کو اپنے فولادی شکنجے میں جکڑ لیا۔ میں نے اس کو 2 جھٹکے دیے کیونکہ اس کی گردن موٹی تھی۔ مجھے شک تھا کہ ایک جھٹکے میں اس کی گردن نہیں ٹوٹے گی، دوسرے جھٹکے کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھلک گیا۔ دوسرا ڈاکو اپنے پیٹ پکڑے بیٹھا ہائے ہائے کر رہا تھا اور یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر وہیں بیٹھے بیٹھے بولا، دادا رحم کرو، مجھے نہ مرنا۔